Warm greetings of the day. So, on this 76th Republic Day, ignite the spark of knowledge, the flame of innovation, and the fire of compassion to the freedom in mind, strength in words, pride in our hearts, and memories in our soul. And let's celebrate the achievement of our great nation. Cherish the music of democracy, work together for the prosperity of India, embraces the unity for all people and wishing for a society that prioritizes social justice, uphold liberal values for the well-being, advocacy and dignity of every citizen. So, every nation has a message to deliver, a mission to fulfill, a destiny to reach. So, in a democratic race, the well being, the individuality, and the institutionalization of that individuality of every citizen is highly indispensable for the overall peace, progress, and prosperity of our nation. So it's a momentous day to reflect on our great nation's remarkable journey towards democracy, growth, progress, and development, and the values enshrined in our Indian Constitution. And remember, Constitution is not just a mere lawyer's document. It is a vehicle of life and it's a global spirit, a spirit which is always the spirit of the age. So let's new India arise out of peasant cottage, grasping the plough out of herds, cobbler, and sweeper. So, to uphold this democratic framework, we, the Just Scriptum team, presents you this virtual session. So, on this special and patriotic occasion of 26th January 2025, I welcome our keynote speaker and all the virtual participants in this constitutional law lecture series. The title of the event promises on reframing the ideals of constitution, evolution, democratic governance, and the role of nation building that will augment the, the insightful lecture on its sovereign autonomy, constitutional relationship, democratic regime, role impact of society in nation building. So, to introduce me today, our keynote speaker is Mohammad Hussain Ansari, sir. Sir is a practicing advocate in Allahabad High Court and serves as a vice president of youth category in Prime Rose Shiksha Sansthan. Sir is a passionate legal professional about empowering legal community and actively provides free legal aid educations and promote legal awareness across diverse sectors, ensuring access of justice for all. Sir is highly dedicated to social change, and his work bridges the legal expertise with grassroots knowledge on vast legal disciplines and stimulate harmony in the courtroom and corporate sectors. So, with this prolonged introduction, once again I welcome you all on this 76th Republic Day celebration in our Constitutional Law lecture series. So, now, hereby, I would like to invite our keynote speaker, Advocate Ansari, to facilitate the session. So, over to you, sir. Thank you so much, Yasser. That was such a great introduction, and I take a great responsibility, and I'm very happy that you have given me such a great platform to share my thoughts and talk about the very important topic regarding the Constitution. And I would like to say everyone a very happy Republic Day to all of our viewers. So we'll start the session with the. So I think everyone will be coming comfortable with the Hindi or English. Please give me a thumbs up if you are comfortable with English.
or please give me your inputs, or we should continue with Hindi. Okay, we'll try and we'll do the English part. Okay, we'll do English and Hindi both. Okay, will that be okay for all? So अभी मैं क्या अज्यूम करके चल रहा हूँ कि हम जितने भी यहाँ लोग हैं, दे आर ऑल फ्रॉम दी मोस्ट ऑफ देम दे आर ऑल फ्रॉम दी लॉ बैकग्राउंड. सो आई बिलीव आप लोगों के पास बैरक जरूर होगी. सो if you have the barracks with you, the constitution, please keep that barrack with you, because जो की रेलेवेंट चीजें होंगी हमारे साथ, तो वो आप कनेक्ट कर पाओगे चीजों को. हाँ जी कुलदीप जी, इंग्लिश विल बी फाइन, ग्रेट, नो प्रॉब्लम. सो जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन को आई थिंक आई एम ऑडिबल टू एवरीवन, राइट? प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ आई एम ऑडिबल प्रॉपर्ली, नॉट ब्रेकिंग इन एंड आउट. ग्रेट. सो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से पहले क्या क्या चीजें, ऐसी परिस्थितियां आई इन पूरी कंट्रीज में, डिफरेंट कंट्रीज, पूरी दुनिया में, ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया कॉन्स्टिट्यूशन का. जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज भी होती हैं, जिसमें हमें ह्यूमन राइट्स मिलते हैं, हमें फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, हमें बहुत सारे ऐसे राइट्स दिए जाते हैं जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कवर करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, वो कहाँ से डेवलप हुआ. सो हम थोड़ा सा हिस्ट्री का पार्ट कवर करेंगे मोस्टली, क्योंकि आज हम 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे है, जब आज के दिन ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फुली इन फोर्स में आया था. इसलिए हम ज्यादातर कोशिश करेंगे कि हमारी जो पास्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, हम उसको कवर करें. तो पहले तो हमें एक जानना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी आई कहाँ से. तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा 1215 में, 1215. तो उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे राजा हुआ करते थे जो अपनी मनमानी चलाते थे. उनको कोई भी ऐसा लॉ बनाते थे या टैक्सेस लगाते थे, उस पे किसी का भी कुछ कंट्रोल नहीं होता था आम जनता का. तो उस टाइम पे बहुत लोगों के अंदर आक्रोश होता था, क्योंकि उनकी नहीं सुनी जाती थी, उनके पास कोई ऐसे राइट्स नहीं थे, और ना तो उनको कुछ समझा जाता था. तो उस टाइम पे 1215 में इंग्लैंड में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था किंग जॉन. तो उन्होंने क्या किया कि वो एक टैक्स लेके आए जनता के लिए, जो कि टैक्स बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था, और वो मनमाने तरीके का टैक्स था, जिसमें ऑब्वियस सी बात है कि जो पब्लिक थी वो बिल्कुल भी दे वर नॉट हैप्पी एट ऑल. तो लोगों ने सोचा कि कोई ऐसा कानून लाया जाए जिसके राजा भी उससे ऊपर ना हो, राजा को भी वो कानून मानना पड़े. तो किंग जॉन को ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी. हालांकि उन्होंने फिर उस चीज को दबाने की भी कोशिश करी, लेकिन उससे क्या हुआ, एक ऐसा आंदोलन शुरू हुआ, एक ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ जिससे राजा को भी मजबूरन उसमें अपनी संधि देनी पड़ी, और 1215 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना पूरी उस इंग्लैंड के एरिया में, जिसको हम लोगों ने जाना मैग्ना कार्टा के नाम से. जैसे कि हम जो लॉ स्टूडेंट है उन्होंने पढ़ा होगा मैग्ना कार्टा के बारे में, बट ये मैग्ना कार्टा की हिस्ट्री है कि कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप और डिराइव कहाँ से हुआ पूरी दुनिया में. तो जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन जिसने हमारे राइट्स की बात करी, हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सारी जो राइट्स हैं ये हमें मैग्ना कार्टा से मिलती है. तो ये मैग्ना कार्टा 1215 में हमें इंग्लैंड में मिला. फिर दुनिया में जब अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे किया गया मैग्ना कार्टा को ध्यान रख के, तो मानव अधिकारों को लिख दिया गया, कानून सबसे सर्वोपरि है, तो कानून को जो है वो सबसे ऊपर रखा गया. और नॉर्मल जो पब्लिक थी उनका सबसे ज्यादा डिमांड यही थी कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए, कोई ऐसा लॉ बनाया जाए जो किसी से भी ऊपर कोई ना हो, कोई राजा ना हो, या राजा के आने वाले सक्सेसर्स भी हो तो वो भी उस लॉ से ऊपर ना हो, राजा भी उस लॉ से ही बाउंड होता हो. तो मैग्ना कार्टा ने ये काम किया. मैग्ना कार्टा की वजह से ये हुआ कि सारे जो राजा थे, या उनके बाद जो किंग जॉन के बाद जितने भी राजा है, दे वर बाउंड विद दिस लॉ. सो लॉ इज अबव ऑल. सो फिर 1885 में ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को नोट डाउन करनी है तो वो कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर द इंपॉर्टेंट डेट्स फ्रॉम वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन आर बीन डिराइव्ड. तो जो हमारा 1885 में इंग्लैंड में
एल्बर्ट डाइसी नाम के एक शख्स थे जिन्होंने रूल ऑफ लॉ के बारे में कुछ जानकारी दी हमें। रूल ऑफ लॉ उन्होंने क्रिएट किया। अब रूल ऑफ लॉ में उन्होंने 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाईलाइट करी, और वो 3 चीजें थी कि ऐसा कानून जिसके ऊपर राजा भी ना हो, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया कि एक ऐसा लॉ बनाया जाए जो अबव ऑल हो, लॉ ऑफ द लैंड हो, वहां पे कोई भी ऐसा राजा, कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो लॉ से ऊपर अपने आप को समझता हो। दूसरी चीज जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज डाली गई वो थी कानून जो सबके लिए बराबर हो, इक्वल लॉ टू ऑल। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एक कानून जो सबके लिए बराबर हो और सबके लिए एक समान प्लेटफॉर्म देता हो। तीसरी चीज जो उसमें डाली गई वो था कि एक ऐसा कानून जो आजादी को बेसिक कोर या बेसिक स्ट्रक्चर मानता हो। तो ये 3 चीजें उसमें इनकलकेट और ऐड करी गई और उसको एक तरीके से डिफाइन किया गया। उस डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैग्ना कार्टा का था वो था कि आजादी उसका एक बेसिक कोर और एक बेसिक स्ट्रक्चर था, क्योंकि सबका फ्रीडम, लिबर्टी, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिबर्टी वर्ड ऐड है। आप सब लोग अगर बेयर एक्ट हो तो आप देखिए, लिबर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस आजादी को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी गई। अब जब भारत में आजादी के बाद हमारा कानून या हमारा संविधान को तैयार करने की बात हुई, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात ये हुआ कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से हम लोगों को ये समझना था कि स्टेट को हम कैसे डिफाइन करें। क्योंकि इंडिया में स्टेट हम समझते हैं जैसे हमारा दिल्ली, यूपी, झारखंड, बिहार, ये हम स्टेट समझते हैं, इसे हम स्टेट की डेफिनेशन में रखते हैं कि एक राज्य। लेकिन जब हम इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं, जब हम इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो स्टेट का मतलब होता है हम एक कंट्री को भी रेफर करते हैं एज अ स्टेट। जैसे यूएसए एक स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो स्टेट इज अ कंट्री अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ। लेकिन हमारे इंडिया में भी हम इंडिया को भी स्टेट मानते हैं, लेकिन जो हमारे स्टेट्स हैं उसको भी स्टेट्स कहते हैं। तो स्टेट्स का डेफिनेशन जब इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जब हमने उठाया, तो उसका ये था कि एक पॉलिटिकल इकाई जिसमें हम एक क्षेत्रफल डिसाइड कर सकें, जिसमें हम एक टेरिटरी डिसाइड कर सकें, जहां पे हमारी एक हद पता हो, जो वो हमारा स्टेट डिफाइन करता हो। तो इसलिए हमारे लिए वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब भारत में अलग अलग प्रकार के लोग थे, भारत में अलग अलग तरीके के लोग, बहुत डिफरेंट आइडियोलॉजी, बहुत डिफरेंट संस्कृति, सबके अपने एक व्यूज थे, सबके एक अपने अपने विचारधारा थी। तो बहुत मुश्किल हो रही थी उस टाइम पे सारी चीजों को कंबाइन करके बनाना। तो एक संविधान बनाने वालों ने एक ये चीज करी कि सबकी विचारधारा को सोचते हुए, रखते हुए, उनकी सोच और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए सबके अधिकार को एक समान कर दिया गया। और ये भारत में एक रेवोल्यूशनरी काम किया गया मैग्ना कार्टा को ध्यान में रखते हुए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी डिराइव्ड है मैग्ना कार्टा के कॉन्सेप्ट के ऊपर। सो उसमें होता यह है कि हमने जब मैग्ना कार्टा के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हुए हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो हमने कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबको एक समान अधिकार दिया, जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हमने सबको फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी हर व्यक्ति, हर नागरिक का एक समान अधिकार होगा। इंग्लैंड में कई ऐसे लिखित, मतलब अगर हम बात करें इंग्लैंड की या यूएस की, तो वहां पे कोई भी एक लिखित कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वहां की पार्लियामेंट कुछ भी जो भी कानून बनाती है वो एज अ कॉन्स्टिट्यूशन ही ट्रीट किया जाता है। जैसे अब अगर हम बात करें इंग्लैंड में क्या होता है, इंग्लैंड में बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं, जैसे अगर कोई भी स्टेट है, तो वो स्टेट एज इन की जैसे उनके अलग अलग स्टेट, हमारे यहाँ यूपी, बिहार ऐसे स्टेट्स हैं, तो वहां पे उनके स्टेट्स अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी बना सकते हैं, उनको अलाउड है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अगर वो चाहे वहां के स्टेट्स, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं कि वो अपने आप को अलग दिखा सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ऐसा कुछ नहीं रखा। हमारे स्टेट्स जो है वो इंडिया से अलग नहीं हो सकते, उनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको एक राइट देता है। जबकि अगर हम बात करें, जो पार्लियामेंट कह देती है वहां पे वही कानून बन जाता है। तो सारे देशों में सबका अपना 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 एक तरीका है। जबकि भारत का जो संविधान है वो अब तक का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है, जो कि एक बहुत ही प्राउड करने वाली बात है। बेसिकली ज्यादातर कंट्रीज में अगर हम बात करें अमेरिका या यूएस की,
तो उसमें दो चीजें होती हैं कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन या तो यूनिटरी होता है या तो फेडरल होता है। आप लोगों को इस बारे में आइडिया है? प्लीज हैंड अपना आप ऊपर कर, रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी आइडिया अबाउट फेडरल एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट यू? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आई गेस सभी जानकार हैं यहाँ पे काफी। सो गाइज, ज्यादातर कंट्रीज में क्या होता है कि या तो वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करते हैं या तो वो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करते हैं। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जिसमें सारे पावर्स जो है ना वो केंद्र के पास होते हैं, यानी कि वो केंद्रीय शासित होते हैं और केंद्र के पास सारे पावर्स होते हैं कि वो लॉ बनाए, एग्जीक्यूट कराए, सारे पावर्स उनके पास होते हैं। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि जहां अलग अलग राज्य मिलके एक राष्ट्र बनाते हैं तो केंद्रीय सरकार के पास भी पावर होता है और राज्य सरकार के पास भी पावर होता है। तो ये दोनों तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग कंट्रीज में चलते हैं। अब अगर हम अपनी बात करें कि इंडिया में हमारे साथ क्या है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना तो यूनिटरी है और ना तो वो फेडरल है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है क्वाज़ी फेडरल कॉन्सेप्ट के ऊपर, यानी कि एक ऐसा राष्ट्र जहां केंद्र और राज्य दोनों के पास पावर हो। सो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो सेग्रीगेशन की गई, तो उसमें क्या हुआ कि जो सेंटर्स की जो पावर थी, जिसमें सेंटर जो है वो लॉ बना सकती थी, तो वो पावर्स को जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें हमने डाला उसको यूनियन लिस्ट में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि काफी सारी हमारे शेड्यूल्स है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। सो जो सेंटर्स जो जिन चीजों पे कानून बना सकती है उन कानूनों को हमने डाला यूनियन की लिस्ट में, जिसमें हमारे स्टेट्स को पावर है कि वो कानून बना सके अपने स्टेट्स के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर आप शेड्यूल कास्ट के ऊपर या कैटेगराइज करना हो शेड्यूल कास्ट के ऊपर या ओबीसी के ऊपर, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ईडब्ल्यूएस के ऊपर, तो इन सब चीजों के ऊपर जब हमने स्टेट्स को पावर दी कि वो बनाए कुछ कानून, तो वो हमारा किस लिस्ट में आता है? वो हमारा स्टेट लिस्ट में आता है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्करेंट लिस्ट है जिसमें हमने पावर दी स्टेट और सेंटर दोनों को कि वो अपने हिसाब से कानून बना सके। तो ये जो पूरा एक ताना बाना है, ये जो एक पूरा एक प्रक्रिया है, ये जो पूरा एक सिस्टम हमने क्रिएट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसको हमने कहा क्वाज़ी फेडरल। तो ना तो हम यूनिटरी हुए और ना ही हम फेडरल हुए, हम क्वाज़ी फेडरल हैं जिसमें हमने दोनों चीजों में अपने आप को पावर्स दी, सेंटर को भी दी और स्टेट को भी दी। आई गेस एवरीवन इज गेटिंग। अगर किसी को कोई क्वेश्चन या कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज रेज योर हैंड्स। अगर आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे अभी हाल फिलहाल में काफी चर्चा हो रही है उसकी, किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एक मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसान ये कह रहे हैं कि जो बेसिकली बिल्स होते हैं ना व्यापार के ऊपर या फिर किसान के ऊपर, तो वो स्टेट की पावर में आता है। उनपे बिल्स जो है, वो लॉज जो है वो स्टेट बना सकता है। तो बेसिकली किसान का जो मेन प्रॉब्लम है वो ये कह रहे हैं कि अगर राज्य के पास पावर है तो सेंटर उस पर बिल कैसे निकाल रही है। तो विल नॉट गो इनटू द डेप्थ ऑफ दिस केस, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड कि उसमें क्या चीजें होनी है, क्या चीजें नहीं होनी है। तो सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड एंड विल गेट टू नो कि उसमें क्या है सारी चीजें। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात करते हैं तो दो चीजें हमारे दिमाग में आती है। एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा संविधान, और एक वर्ड आपने सुना होगा संविधानवाद। तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये दो वर्ड हैं जो कि हमको समझना पड़ेगा बिफोर वी गेट इनटू द मेन डिटेल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि जो सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया में कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। उनके पास भी वो मानते हैं कि कुरान उनका कॉन्स्टिट्यूशन है। सऊदी अरेबिया इज अ इस्लामिक कंट्री, तो कुरान को वो मानते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन वहां पे तानाशाही भी है, क्योंकि डिक्टेटरशिप भी है। क्योंकि डिक्टेटरशिप इसलिए है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में बिलीव नहीं करते। वो कॉन्स्टिट्यूशन तो है उनके पास, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी संविधानवाद को बिलीव नहीं करते। अब संविधानवाद को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बेसिकली संविधानवाद हम उस चीज को कहते हैं जब हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर हम
किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करें। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा हमारी एग्जीक्यूटिव अलग काम करती है, हमारी जुडिशरी अलग काम करती है और हमारी लेजिस्लेचर अलग काम करती है। तो जब हम इस कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं तो यही हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कि हमारा संविधानवाद, इंडिया संविधानवाद पे बिलीव करता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे बिलीव करता है। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है प्लस वी बिलीव इन दी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, बिकॉज हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर है। हमारे पास, जैसे आप लोगों ने एक केस सुना होगा केशवानंदा भारती, जितने भी लॉ स्टूडेंट होंगे उनको उनको बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, जिसमें हम लोगों को एक जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। जुडिशियल रिव्यू तब चीजों मतलब आती है उस हाईलाइट में जब कोई पार्लियामेंट में ऐसा लॉ पास होता है जो लॉ लोगों के लिए सही नहीं है, तो वो चैलेंज किया जाता है इन द सुप्रीम कोर्ट। सो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि उस लॉ को, या तो वो अगर फंडामेंटल राइट से अगर वो क्लैश करता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो उस लॉ को नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर कर सकते हैं, उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं और उसको अप्रूव भी कर सकते हैं, उनको अपहेल्ड भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास फुल उसका पावर होता है। इस पावर को हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशनल संविधानवाद का। अब थोड़ा सा हम जाते हैं अपनी हिस्ट्री में, जिसमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री के ऊपर हम बात करते हैं। आई थिंक यहां तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज रेज योर हैंड। शाजिया परवीन जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। सर गुड आफ्टरनून सर। एक्चुअली सर मुझे ये पूछना था कि डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है? डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली देखो, यहाँ पे डिफरेंस कुछ नहीं है। डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशन एक बिलीव है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मेन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें हमारा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, उसकी फंक्शनरी को हमने डिफाइन कर रखा है कि कौन सा डिपार्टमेंट किस तरीके से काम करेगा। तो मेन चीज वही है। डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशन एज सच कोई बहुत वो चीज नहीं है। हालांकि ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, हम ज्यादा इन डिटेल पे नहीं जाएंगे, तो जिन लोगों के जो भी क्वेश्चन है आप नोट डाउन करके रखो। विल मेक श्योर कि एंड ऑफ द सेशन 10-15 मिनट हम कोशिश करेंगे कि आप सब लोगों के जो जो क्वेश्चंस है, जो जो चीजें हैं, जो जो डाउट्स हैं, वो हम आपके क्लियर कर सकें। So we'll make sure कि all the problems and all the questions that you have in your mind, we can rectify them. We can make sure कि आप लोगों के सारे doubts को clear किए जाए। So अगर आप लोगों को पता होगा कि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जब हमारी हिस्ट्री जब हमारी तैयार हो रही थी, जब हमारा बहुत सारी चीजें हो रही थी उस टाइम पे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, सो आप लोगों को पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी रजिस्टर्ड हो गई थी आई गेस 1600 में, 1600 उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बेसिक काम था वो ये था कि वो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आए थे। उनका सबसे बड़ा जो मेन चीज थी कि इंडिया में आना है ट्रेड करने के लिए। अब वो उनका मुगल्स के साथ क्या था, प्लासी में क्या हुआ, और उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड हो जाएगा। बक्सर में क्या हुआ, उन सबकी लड़ाई, उसके बाद जो उनकी जो संधियां हुई आपस में, उन लोगों ने क्या किसको राइट्स दिए, किसने क्या किया, उसमें इतना ज्यादा इन डिटेल नहीं। जो हमारे लिए रेलेवेंट है, जो हिस्ट्री से थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन की भी चीजें कवर हो जाए और हिस्ट्री की भी चीजें कवर हो जाए, तो हम चाहते हैं कि हम उतने ही चीजों पर बात करें। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी रजिस्टर हुई 1600 में, तो वो यहाँ इंडिया में आई अपना व्यापार करने के लिए, अपना ट्रेड करने के लिए। उस टाइम पे 1773 में हमारा एक पहला रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, वो आया। उससे पहले भी एक्ट आने शुरू हो गए थे, बट जो इंपॉर्टेंट एक्ट है हम उनके बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल किया जाए। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी और जो क्वीन जो थे, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स थे, जो कि एक आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड में जो सरकार चलती थी, वो इंग्लैंड नहीं चलाता था पहले इंडिया को गवर्न, ये जो ट्रेड करने आता था, तो वो सारा जो ट्रेडिंग का जो पावर था ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था।
तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जो एक्ट पास हुआ, उसका मेन जो पर्पस था टू रेगुलेट एंड कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा एक और एक्ट पास हुआ जिसमें उसको कहा गया 1773 के एक्ट में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हुई, वो हम बता देते हैं आप लोगों को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जब हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जब आया तो उसमें दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई। पहली चीज कि गवर्नर अपॉइंट हुए इन 3 प्लेसेस, 3 जगहों पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने गवर्नर अपॉइंट किए। अब वो जगह कौन कौन सी थी? पहला बॉम्बे में, दूसरा मद्रास में, और तीसरा आई गेस बंगाल था, आई गेस शायद बंगाल ही था। तो बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल, इन 3 जगहों पे गवर्नर अपॉइंट किए गए। और उन गवर्नर में से जो बंगाल में जो गवर्नर था, उनको बोला गया द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब आप लोगों को किसी को अगर ये चीज पता हो कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, किसी को पता है ये? एनीबॉडी? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? प्लीज रेज योर हैंड इफ एनीबॉडी नोज द आंसर। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? गूगल करे बिना बताओ। नोबडी विल गूगल इट। वॉरेन हेस्टिंग्स। कर लिया गूगल? नहीं सर, गूगल नहीं किया, हिस्ट्री था हमारे सब्जेक्ट में। चलो चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है, यू नो इट। व्हाट वाज योर नेम? रिया दासगुप्ता। वेरी Yes. गुड रिया। So you are absolutely right. Warren Hastings was the first Governor General of Bengal, जिनको हम लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग भी बोलते हैं। तो 1773 में एक चीज और हुई, 3 गवर्नर जनरल बनाने जाने के साथ साथ हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा को भी स्टैब्लिश किया गया। उस समय क्या था, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट नहीं था उस समय। जो पहला सुप्रीम कोर्ट जो स्टैब्लिश हुआ वो कैलकाटा में स्टैब्लिश हुआ। अब कैलकाटा में जब स्टैब्लिश हुआ तो लॉर्ड इम्पे को बनाया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा, जिसको हम पहला इंडिपेंडेंस से पहले के जो सबसे पहले चीफ जस्टिस हैं, हम उनको भी लॉर्ड इम्पे को ही थे, उन्हीं को ही मानते हैं। क्योंकि जब एक तो एक चीफ जस्टिस हो गए, फर्स्ट चीफ जस्टिस आफ्टर द इंडिपेंडेंस एंड द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिफोर द इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के पहले जो पहले हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड इम्पे। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू हुआ कि जब तीनों गवर्नर जनरल बना दिए गए बंगाल में, कैलकाटा में और बॉम्बे में, तो वहां पे जो ऑफिसर्स थे जो इंग्लैंड में काम कर रहे थे, उनकी वाइफ्स और उनकी बीवियों को बहुत प्रॉब्लम होने लगी। क्योंकि इंडिया में बहुत पैसा था उस टाइम पे, बहुत सोना था, बहुत पैसा था, बहुत बहुत चीजें थी, रिसोर्सेज बहुत थे इंडिया पे। तो पैसा इतना था कि शिप्स भर भर के इंग्लैंड जाने लग गए, पैसे, सोना जवाहरात सारी चीजें होने लग गई। तो वहां पे जो इंग्लैंड के जो ऑफिसर्स थे, उनकी वाइफ है, तो प्रॉब्लम तो होगी, दूसरे की वाइफ के पास ज्यादा पैसे होंगे। तो उनको लगने लगा कि, तो उन्होंने अपने हस्बैंड्स को बोलना शुरू किया कि यार जो वहां पे जो इंडिया में ऑफिसर्स हैं, उनके वाइफ के हार, गले में सोने का हार और कंगन और महंगी महंगी घड़ियां, और वो तो बहुत कमा रहे हैं, तुम क्यों नहीं कमा रहे हो? तो ये सच्ची बात है ये। तो उन लोगों को ऐसा बहुत प्रॉब्लम होने लग गया, पत्नियों के पास इतना सारा पैसा सोना पहुंच रहा था, इंडिया से जा रहा था शिपों में लद लद के, और वो अमीर हो रहे थे। तो इस चीज को वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हुई। तो लोगों ने ऑब्जेक्शन करना शुरू किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, वहां के जो 3 लोग हैं वो तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, हम तो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, हम गरीब ही हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए फिर हम लोगों ने एक पिट्स इंडिया एक्ट लागू किया। उस पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ उसका पर्पस ये था कि जो वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड इम्पे, इनको वापस बुलाना था। सिर्फ इस पिट्स इंडिया एक्ट का सिर्फ यही एक मेन पर्पस था, और कोई पर्पस नहीं था। और इंग्लैंड में ही जब ये इशू बनने लग गया कि ये लोग शिप्स में पैसे भर भर के भेज रहे हैं, और इनके पैसे, इनकी वाइफ्स जो है बहुत अच्छे कपड़े पहन रही है, खूब सारा पैसा कमा रहे हैं, अमीर बन रहे हैं, तो इनका क्या हुआ कि लॉर्ड एम्पे और वॉरेन हेस्टिंग का इम्पीचमेंट का ऑर्डर पास हुआ, इम्पीचमेंट करने की कोशिश की गई इंग्लैंड के अंदर। तो
इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरा हाउस ऑफ लॉर्ड्स ही खरीद लिया उस टाइम पे, तो उनका इम्पीचमेंट नहीं हो पाया। पूरा का पूरा हाउस ऑफ लॉर्ड ही खरीद लिया, कोई नहीं बचा, सबको खरीद लिया। तो अब जब जैसे हमारे यहाँ इंडिया में इम्पीचमेंट होता है, तो वो क्या होता है कि एक एक मोशन पास किया जाता है। जैसे अभी आप लोगों ने हाल फिलहाल में सुना होगा, एक हमारे हाई कोर्ट के जो जज थे, उन्होंने कुछ बयान दे दिया था उल्टा सीधा। तो अ, करीबन काफी सारे जो सीनियर एडवोकेट्स थे और काफी सारे ऐसे सांसद थे जिन्होंने राज्यसभा में इम्पीचमेंट का मोशन पास किया। तो बेसिकली क्या होता है, इम्पीचमेंट मोशन जब पास होता है तो वो हटाने के लिए इम्पीचमेंट मोशन पास किया जाता है, जिसमें मेजोरिटी देखी जाती है कि कौन ज्यादा मेजोरिटी में, कौन कम मेजोरिटी में। अगर ज्यादा मेजोरिटी में उसकी इम्पीचमेंट के फेवर में जाते हैं तो इम्पीचमेंट हो जाती है, कम फेवर में जाते हैं तो नहीं होती। तो वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड इम्पेयर ने क्या किया, पूरा का पूरा हाउस ऑफ लॉर्ड ही खरीद लिया। तो जब खरीद ही लिया तो फिर कौन बोलेगा, तो वो उनका इम्पीचमेंट हो नहीं पाया। अब उसके बाद हमारा एक एक्ट आता है, चार्टर एक्ट। क्योंकि उसके मतलब बीच में भी काफी अब एक्ट्स आते रहे, लेकिन वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं उन एक्ट्स के बारे में बात करूंगा जो हमारे लिए रेलेवेंट है। तो एक चार्टर एक्ट आया जिसको 1813 में, उसमें क्या हुआ कि उसमें 3 चीजें फिर से बहुत इंपॉर्टेंट लाई गई जो कि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब क्या हो रहा है कि ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना ना, कॉन्स्टिट्यूशन अचानक से नहीं बन गया कि उसकी सारी फंक्शनरी को हमने जोड़ दिया, किसी के ख्याल में आया कि अरे यार ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, यहां से ले लेते हैं, वहां से ले, ऐसा नहीं हुआ। स्लोली स्लोली डेवलप हो रहा था, धीरे धीरे चीजें बन रही थी, एक्ट्स पास हो रहे थे, नए नए चीजें आ रही थी इंग्लैंड से, चीजें मतलब फंक्शंस हो रहे थे। तो चार्टर एक्ट 1830 में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक मोनोपोली होती थी कि ट्रेड सिर्फ वही कर सकते हैं, उनके अलावा और कोई ट्रेड नहीं कर सकता, ये उनकी मोनोपोली थे। तो इस एक्ट के बाद क्या हुआ कि इस मोनोपोली को सबसे पहले तो खत्म किया गया, क्योंकि इससे पहले सिर्फ वही ट्रेड कर सकते थे। तो ड्यूरिंग 1813 एंड 1833, 1833 सॉरी 1813 से लेके 1833 तक काफी सारे एक्ट्स आए, काफी सारे रिफॉर्म्स भी हुए। तो उसके बीच में हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है 1830 में जो मोनोपोली खत्म करने की बात हुई, तो वो इसी एक्ट के बारे में हुई। फिर उसके बाद एक और पॉइंट उसमें था बहुत इंपॉर्टेंट कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1 लाख रुपए हर साल इंडिया के एजुकेशन पे खर्चा करेगा। ये उस एक्ट में था, एक्ट चार्टर एक्ट 1813। तो ये रिफॉर्म्स थे, सारे रिफॉर्म्स हो रहे थे। अब उस टाइम पे क्या होता था ना, 1813 से लेकर 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना, वो दोनों काम करती थी इंडिया में। एक तो वो मतलब दोनों फंक्शंस वो परफॉर्म करती थी। पहला वो पॉलिटिकल फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहे थे, और दूसरा वो कमर्शियल फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहे थे। तो दोनों फंक्शंस को परफॉर्म करने का मतलब है कि उनके पास ज्यादा पावर थी। तो उस पावर को डिग्रेड करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर थोड़ी सी लेने के लिए, उनपे ये 3-4 शर्तें लगाई। जो मेन 3 शर्तें थी वो ये कि उनकी मोनोपोली खत्म करी गई, दूसरी 1 लाख रुपए पर एक एवरी ईयर उनको स्पेंड करना था इंडियन एजुकेशन के ऊपर, और तीसरी चीज जो उनको करनी थी वो ये था कि क्रिश्चियन मिशनरीज को यहाँ काम करने का परमिट दिया गया, उनको काम करने का अलाउ किया गया। जैसे आप लोगों को देखा होगा कि कॉन्वेंट स्कूल बहुत सारे हैं हमारे इंडिया में, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल स्टैब्लिश हुए, वो उसी टाइम के बाद से शुरू हुए। क्योंकि इंडियन मिशनरीज ने ही जब शुरू किया काम करना, तो बहुत सारे स्कूल्स को स्टैब्लिश किया, तो एजुकेशन पे बहुत सारा काम हुआ। उसके बाद 1 लाख रुपए उन्होंने स्पेंड करना शुरू किया पर एवरी ईयर। हाँ जी, हाँ जी कुलदीप जी, बहुत ज्यादा हम इन डिटेल उसमें नहीं जा रहे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है बहुत, क्योंकि हिस्ट्री में चले जाएंगे तो हिस्ट्री हम ज्यादा कवर नहीं कर रहे हैं। तो हम जहां तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेवेंट है जो चीजें, वही चीज कवर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम है, काफी ज्यादा टाइम नहीं है। हिस्ट्री में चले जाएंगे तो हिस्ट्री तो बहुत लंबा हो जाएगा फिर। अब इसके बाद जो हमारा जो एक्ट आता है, वो इंपॉर्टेंट एक्ट है, वो है चार्टर एक्ट 1833। इस चार्टर एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई, क्योंकि पहले क्या होता था कि आप लोगों को पता होगा कि मेंबर ऑफ काउंसिल हुआ करते थे उस टाइम पे। तो जैसे गवर्नर जनरल जो होते थे ना, उनके मेंबर ऑफ काउंसिल हुआ करते थे। तो मेंबर ऑफ काउंसिल को एनहांस करने के लिए एक मेंबर ऑफ काउंसिल जोड़ा गया कि लॉ मेंबर। तो चार्टर एक्ट 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, जैसे अब मैंने बताया ना कि 3 गवर्नर जनरल थे, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, ये 3 थे।
तो इनमें से दो गवर्नर जनरल जो कि है बॉम्बे एंड मद्रास, इनकी पावर्स को कम कर दिया गया इस चार्टर एक्ट के बाद से, चार्टर एक्ट 1833। इसके बाद से क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास, इनकी पावर्स को खत्म कर दी गई, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिसको हमने बाद में जो कि लॉ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उनको बोला गया, जो कि फर्स्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे विलियम बेंटिक। तो उनको जो है एक उपाधि दे दी गई और इनके दोनों के पावर कम कर दिए गए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ वो ये हुआ कि एक लॉ मेंबर जोड़ा गया। लॉ मेंबर 4 ही होते थे, काउंसिल ऑफ मेंबर्स 4 थे, तो एक और लॉ मेंबर जोड़ा गया, वो थे लॉ मेंबर मिस्टर लॉर्ड मैकुले। अब लॉर्ड मैकुले बहुत इंपॉर्टेंट नाम है लॉ के अंदर, क्योंकि अगर किसी को पता हो कि लॉर्ड मैकुले ने कौन कौन से एक्ट्स लिखे हैं, डज एनीबडी नो अबाउट इट? प्लीज रेज योर हैंड एंड लेट मी नो। लॉर्ड मैकुले ने क्या क्या ड्राफ्ट किया था इंडियन क्रिमिनोलॉजी या इंडियन लॉ सिस्टम के अंदर, उन्होंने क्या योगदान दिया है? प्लीज रेज योर हैंड एंड लेट मी नो इफ एनीबडी नोज लॉर्ड मैकुले। एनीवन? ग्रेट ग्रेट यश, बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली राइट। हमारे लॉर्ड मैकुले ने इतना बढ़िया ड्राफ्ट किया, इतना बढ़िया ड्राफ्ट किया। हम लोग जिस आईपीसी को जानते हैं, जो हमारी अब भारतीय न्याय संहिता है, हमारी जो सीआरपीसी है जिसको हम आज बीएनएसएस के नाम से जानते हैं, ये दोनों एक्ट, ये दोनों सीआरपीसी और आईपीसी लॉर्ड मैकुले ने ड्राफ्ट करी थी, और ऐसी ड्राफ्ट करी थी कि उस टाइम पे इतना इतना ज्यादा सोच पाना। आईपीसी अगर आप पढ़ोगे, आईपीसी में आप समझोगे कि कहाँ कहाँ तक चीजें कवर की गई हैं। हर्ट है, असॉल्ट है, और फोर्स, क्रिमिनल फोर्स, ग्रीवियस हर्ट, मर्डर, कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, मर्डर, मतलब इतनी चीजें उन्होंने कवर कर दी जो आज के जमाने में उस चीज को चेंज करना बहुत मुश्किल। अभी भी बीएनएस जो चेंज हुआ है ना, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, उसमें भी खाली शफल सेक्शंस के इधर उधर हुए हैं, क्योंकि बहुत इतना तगड़ा ड्राफ्ट कर दिया उन्होंने कि मतलब मजा ही आ गई। तो लॉर्ड मैकुले ने इंडियन क्रिमिनोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा उनका योगदान है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स उन्होंने दिए। हमारा सीआरपीसी और आईपीसी उन्हीं की देन है। अब जो लास्ट एक्ट हमारा आता है उसके बाद है कि चार्टर एक्ट 1853। अब उसमें क्या हुआ, जो लास्ट हमारा ये वाला एक्ट आया, इसमें हमें इंडियंस को एक पावर दी गई। पहले क्या होता था कि जो हमारे सिविल सर्विसेज होती थी ना, जैसे जो आईएएस वाईएएस होते थे, वो इंग्लैंड से ही ऑफिसर्स होते थे, और वही बनते थे, वही गवर्न करते थे, वही राजा होते थे स्टेट के। तो पहले इंडियंस को अलाउड नहीं था सिविल सर्विसेज में। तो पहली बार चार्टर एक्ट 1853 में सिविल सर्विसेज ओपन की गई इंडियंस के लिए। डज एनीबडी नो कि पहले सिविल सर्विसेज में सबसे पहले कौन थे जो सिविल सर्विस क्रैक किया था? अगर किसी को पता हो तो प्लीज लेट मी नो। अब 1857 किसी को पता है? सर वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के भाई थे, मुझे उनका नाम अभी रिमेम्बर नहीं कर पा रही मैं। कर लो आराम से, ठीक है, आई विल आस्क एट द एंड। तो 1853 में सिविल सर्विसेज हमारे इंडियंस के लिए खोल दी गई। अब 1857 में क्या था ना, रिवॉल्ट हो गया था इंग्लैंड में। ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी पावर्स लेके खुद कंट्रोल में ले लिया इंग्लैंड ने। सत्यानंद टैगोर, एब्सोल्युटली राइट रिया दास गुप्ता, वेरी गुड। तो उस टाइम पे क्या है ना कि इंग्लैंड में भी बहुत सारी चीजें चल रही थी। तो इंग्लैंड में भी बहुत सारी मतलब वहां पे हौस पौश हो रहा था। तो ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी पावर्स ले ली जाए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से भी सारी पावर्स लेने की तैयारी चल रही थी। तो अब हमारा एक एक्ट इंट्रोड्यूस होता है जिसमें हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब चार्टर एक्ट आने बंद हो गए थे। अब जो मेन था वो, क्योंकि पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से चली गई, अब मेन था हाउस ऑफ लॉर्ड्स से सब कुछ कंट्रोल हो रहा था। जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो इंग्लैंड में बैठे थे, जो वहां के पार्लियामेंट्री थी, जो वहां से लॉज आते थे, अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स से सब कुछ कंट्रोल हो रहा था। तो यहाँ पे अब आता है 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब इसमें क्या हुआ, इसमें एक मेजर चेंज किया गया। जैसे मैंने बताया ना कि पहले एक गवर्नर जनरल हुआ करते थे बंगाल, मद्रास, बॉम्बे। तो उसके बाद जब चेंज हुआ तो उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया।
अब इन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में वॉइस रॉय कर दिया गया। तो ये सबसे बड़ा एक चेंज था। डज एनीबडी नो कि हमारे इंडिया के फर्स्ट वॉइस रॉय कौन कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। नहीं। वॉइस रॉय कौन थे फर्स्ट इंडिया के? चलो विल आंसर दैट इन द एंड। सब लोग अपना अपना सर्च करके बैठो आराम से। ईस्ट इंडिया कंपनी सारी पावर्स ले ली गई। अब जब सारी पावर्स हाउस ऑफ लॉर्ड से कंट्रोल होने लग गया वो, तो वहां पे रिवॉल्ट भी हुआ। अब 1862, 1892 ये सब काम के नहीं है, क्योंकि कोई मतलब नहीं, वो हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसमें हमने एक मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट, जिसको हम स्पेशली नोन एज मार्ले रिफॉर्म एक्ट, जो कि सेक्रेटरी और जनरल वॉइस रॉय भी थे। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसमें सेपरेशन या फिर कह लो कि सेपरेट इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम्स, ये चीज इंट्रोड्यूस की गई। इसकी बात हुई कि सेपरेट इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम लाइक कम्युनल हार्मनी, इसके लिए बात की गई। तो काउंसिल ऑफ फोर, यहाँ तक जो काउंसिल ऑफ फोर था ना, उस टाइम पे काउंसिल ऑफ फोर्स हुआ करते थे, तो वो धीरे धीरे बढ़ के ना 60 के आसपास पहुंच चुके थे। काउंसिल ऑफ फोर्स 60 के आसपास ऑलमोस्ट हो गए थे। तो जो काउंसिल ऑफ फोर्स के जो वॉइस रॉय उसे बोलते थे, उस टाइम पे इंडियंस को अलाउ नहीं था, मतलब उस काउंसिल में जाना। उस काउंसिल में आपको कोई मतलब आप नहीं, कोई इंडियन उसमें नहीं ऐड हो सकता था काउंसिल का। तो जो हमारे फर्स्ट मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वॉइसरॉय थे, जो कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1909 में वो फर्स्ट काउंसिल में ऐड हुए। तो अब इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको हम मॉन्टकी चेसफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं स्पेशली। इसमें क्या हुआ, इसमें दो चीजें हुई इंपॉर्टेंट, जो कि हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें क्या है कि डायरार्की की बात की गई, मतलब डुअल गवर्नमेंट। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग जो देखते हो ना कि अपर हाउस, लोअर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा, वो एक्चुअल में इंप्लीमेंट हुआ 1919 में, क्योंकि वहीं पे ही इस बात को फर्स्ट पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें डायरार्की और बाई कैमरल लेजिस्लेशन की प्रस्तावना रखी गई। ये एक्ट लाया गया। अब इसी में ही हमारा जो फंक्शनरी है, लोअर हाउस, लाइक अपर हाउस, राज्यसभा, लोकसभा, ये वहीं का पार्ट है, वहीं से उठाया गया था। उस टाइम पे काफी सारी चीजें हो रही थी, रेवोल्यूशनरी भी चीजें हो रही थी, फ्रीडम फाइटिंग वाला भी सीन चल रहा था, और वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उसी टाइम पे ही ऐसे ही आना, मतलब स्टार्टिंग हुई हो रहा था। तो काफी सारी चीजें पूरी दुनिया में हो रही थी। तो यहीं पे ही हमारा पहली बार बाई कैमरल इलेक्शन की बात होती है। अब इसके बाद दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे आती है कैबिनेट मिशन इन 1946 बनाया गया। कैबिनेट मिशन हमारी बनाई गई ये समझने के लिए कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रिफॉर्म कैसे किया जाए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट तो थी नहीं ना, हम वहां पे कुछ कर रहे थे, सारी चीजें हाउस ऑफ लॉर्ड से कंट्रोल हो रही थी। तो वहां पे उस टाइम पे ऐसी सारी चीजें हुई कि आपने कैबिनेट मिशन इन 1946 में बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है, अगर यहाँ पे कोई ऐसा हो जो जुडिशरी में भी प्रिपरेशन कर रहा हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है उन लोगों के लिए। तो इसमें क्या है कि 3 मेंबर्स बनाए गए इस कैबिनेट मिशन में, जिनके नाम थे अलेक्जेंडर, क्रिप्स और लॉरेंस। यही थे, हाँ, अलेक्जेंडर, क्रिप्स और लॉरेंस, ये 3 लोग थे जिनके एक मेंबर बनाएगी। तो सिर्फ इसलिए आए थे ताकि मतलब ये जो कैबिनेट बनाया गया था ना, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि हम ये डिमांड कर रहे थे, जब 1929 में नेहरू जी ने जब वो हुआ ना स्वराज, पूर्ण स्वराज की बात की जा रही थी, तो पूर्ण स्वराज के टाइम पे यही हुआ कि उन्होंने मना कर दिया था कि हम पूर्ण स्वराज नहीं मानेंगे। अच्छा, किसी को ये चीज आइडिया है कि हम हमारा जो रिपब्लिक डे है, जो क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंस जो है वो तो हम 15 तारीख को, 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस हो गया था, हम इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हो गए थे, ठीक है, 1947 में। लेकिन
26 जनवरी को ही क्यों स्पेशली हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता है? किसी को पता है इसके बारे में? वाई 26 जनवरी? कोई और डेट क्यों नहीं? क्यों ऐसा हुआ था? फिर कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ था हमारा उस दिन। नहीं, वो तो हुआ ही था। वो तो हमने डेट सेलेक्ट करी थी ना, कि जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो इनैक्ट हो गया था वो नवंबर को, 26 नवंबर 1949 में हो गया था। लेकिन जो इन्फोर्स में आया, इन्फोर्समेंट डेट तो 26 जनवरी थी। लेकिन हमने जो रिपब्लिक डे चूज किया, 26 जनवरी चूज किया, वो क्यों चूज किया? एक रीजन है उसके पीछे कि क्यों हमने 26 तारीख ही चूज करी, जिसमें हमने बोला कि हम अपना रिपब्लिक डे उसी दिन मनाएंगे। किसी को पता है क्यों? एग्जैक्टली क्यों उसी दिन किया गया? 26 तारीख को ही क्यों किया गया? बेसिकली क्या हुआ था कि 1929 में एक, आपने देखा होगा जब कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 394 पढ़ोगे तो उसमें भी दिया हुआ है कि 394 में कि 26 तारीख को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फुली जो है इन्फोर्सेबल में आ गया था। लेकिन पूर्ण स्वराज मानते हुए जो एक हमारे जवाहरलाल नेहरू ने उस टाइम पे पूर्ण स्वराज की मांग की थी, तो ये लोग क्या कह रहे थे, हमें डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दे रहे थे, क्योंकि हम बहुत टाइम से मांग रहे थे कि हमको दो भाई, हमें डोमिनियन स्टेट चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेट चाहिए। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जब कॉन्फ्रेंस हुई थी, कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी, शिमला कॉन्फ्रेंस थी, कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई वो याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन एक कॉन्फ्रेंस हुई थी उस टाइम पे। उन्होंने, अब वो जो नेहरू जी थे वो उस टाइम पे बड़े यंग थे, उनका एकदम यंग जोश भयानक तरीके से एकदम उनका मूड था कि नहीं भाई, क्या डोमिनियन स्टेट स्टेट नहीं चाहिए हमको, हमको चाहिए पूर्ण स्वराज। मना कर दिया एकदम साफ। राइट राइट राइट, INC हर्षिता, यस यू आर राइट, जस्ट बिकॉज ऑफ पूर्ण स्वराज। क्योंकि वही जो मीटिंग थी ना, वो किसी नदी के किनारे हुई थी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, तो वो 26 तारीख को ही हुई थी, 26 जनवरी को, पूर्ण स्वराज की जो उन्होंने मांग की थी। तो इसीलिए वो 26 जनवरी को जो मीटिंग रखी गई थी 1929, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप लोग एक बार गूगल पे चेक कर लेना, मुझे डेट शायद थोड़ा सा इधर उधर हो सकती है, बट जहां तक मुझे याद है कि 1929 को पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो इसीलिए 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे मनाया गया। हमारा जो इन्फोर्समेंट डे है वो यही रीजन है उसके पीछे का, कि क्यों सेलेक्ट किया गया 26 जनवरी को। चलो अभी अपन जो है मेन मुद्दे पे आते हैं। अब हम जब